بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم حاجی لشکری صاحب، جناب محترم شاہد خان عباسی صاحب، جناب محترم مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، جناب محترم مفتاح اسماعیل صاحب، میر ہمایون کرد صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے سیاسی قائدین، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں پیس بلوچستان فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بلوچستان کے ایک اہم ایشو پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. معزز خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان وسائل سے مالا مال خطہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل بلوچستان ان تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے. اگر دیکھا جائے دنیا کے جس خطے میں معدنیات نکلتے ہیں یا ان کا ایک بڑا ساحل ہوتا ہے جہاں پوری دنیا آسانی سے اپنے سامان کو پہنچا سکتا ہے، ان خطوں میں اور ان کے رہنے والے باسیوں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے. وہ تمام شعبوں میں آگے یکساں ترقی کرتے ہیں، لیکن بلوچستان وہ بد نصیب خطہ ہے کہ جہاں پر ان کے جس ایریا سے معدنیات نکلتے ہیں وہاں کے لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوتا ہے، ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں بلوچستان میں اگر دیکھا جائے کہ سوئی سے گیس نکلتا ہے، وہاں کے جو باسی ہے ان کو گیس میسر نہیں ہے. جب گوادر بندرگاہ ایک انٹرنیشنل بندرگاہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو بنیادی چیزیں نصیب نہیں ہوتی اور وہاں پہ لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، جو مقامی آبادی ہوتی ہے یا جو سوئے کے علاقے ہے وہاں پر ان کو سوئی گیس میسر نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے بلوچستان کا جو باشعور طبقہ، باشعور نوجوان جو اپنے انفرادی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اجتماعی مفادات کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بلوچستان سے جو چیزیں نکلتی ہے اس پہ سب سے پہلے ہمارا حق ہے، اس پہ سب سے پہلے اہل بلوچستان کا حق ہے اور اس پر سب سے زیادہ حق اہل بلوچستانیوں کا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملکی سطح پر تمام رائٹس تمام شہریوں کے لیے برابر ہے، لیکن ان 74 سالوں میں جب ہم بلوچستان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اپنی جو حق ہے وہ ہمیں 1% بھی نہیں دیا جاتا. اور اس کے علاوہ ہمارا جو باشعور طبقہ یا جو پولیٹیکل ورکر یا جو لیڈر ان بنیادی چیزوں کو اجاگر کرتا ہے تو وہ ان یہاں بسنے والے ملک کے طاقتور اداروں کو ناگوار گزرتی ہے اور وہ ان کے آواز کو دبانے کے لیے ماورا آئین اقدامات اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں. پاکستان کا جو آئین کا حلف اٹھایا جاتا ہے وہی ادارے اپنے حلف کی توہین کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے زندانوں میں پھینکا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے بلوچستان میں ہر عامر کے دور میں یہاں پہ فوج کشی کی گئی، یہاں کے باسیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو زندانوں میں ڈالا گیا اور ان کی آج تک نام و نشان بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا تھا احمد شاہ کے خاندان کے حوالے سے، احمد شاہ کو سردار اختر جان کے بھائی اسد
मकसद के साथ उठाया गया था और आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और ये सिलसिला जारी रहा। यहाँ पे मुशर्रफ दौर में जब मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार आई तो बलूचिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स को, बलोच तलबा को, बलोच बाशऊर तबके को बेधड़क उठाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले मेरे अंकल अली असगर को 2000 में उठाया गया, फिर 14 दिन के बाद उसको छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद 18 अक्टूबर 2001 को उठाया गया। आज तक अली असगर का पता नहीं कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है, आया वो जिंदा भी है, आया वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। 2005 और 2007 में डेरा बुगटी और कोल्लू में फौजी ऑपरेशन किया गया, और जहां पर डेरा बुगटी में नवाब अकबर खान बुगटी का कसूर ये था कि उसने कहा कि जो वसाइल बलूचिस्तान से निकलते हैं उन पे सबसे पहले बलूचिस्तानियों का हक होगा, और यही चीज़ें इन मुल्क के ताकतवर इदारों को नागवार गुजरी, और उस बूढ़े शख्स पे जिसकी उम्र 80 से ऊपर था फौजकशी की गई और उसको दौरान ऑपरेशन शहीद किया गया, और वहाँ से काफ़ी लोगों को उठाया गया। और ये सिलसिला बलूचिस्तान के तमाम अजला में जारी है। अगर आप मकरान बेल्ट को देखे, वहां पर भी जो फौजी ऑपरेशन जारी है, और वहां अगर आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि मकरान बेल्ट से तकरीबन 80% के करीब खानदान माइग्रेट करके दूसरे इलाकों की तरफ चले गए हैं, और वहां पर हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया है। और इसी तरह मैं बताता चलूं कि 2005 और 2007 में जो डेरा बुगटी में फौजी ऑपरेशन किया गया, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक डेरा बुगटी से 6000 खानदान माइग्रेट करके दूसरे इलाकों को गए हैं, और इसी तरह 7000 के करीब फैमिलीज कोल्लू से माइग्रेट करके दूसरे इलाकों को चले गए हैं। तो उनका आज तक न उनके हवाले से आबादकारी के हवाले से पॉलिसियां तरतीब दी गई, और न ही उनको दोबारा आबाद किया गया, और न ही उनको पाकिस्तानी शहरी समझा गया। और इसी तरह जिस तरह हजारों खानदान जिंदानों में पड़े हुए हैं, और उनके हवाले से वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन कानूनी जंग लड़ रहा है, एक पुरअमन तरीके से उनके लिए एहतजाज कर रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी यही है, हमारी जहद का मकसद भी यही है कि हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे आइन की बालादस्ती हो। हम बार बार यही मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर हमारे लोग रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज में मौजूद है तो यहाँ पर अदालतें बनी हुई है, आप उनको अदालतों में पेश कर दो, आप उनको सरेआम फांसी दो, हमें कोई इतराज नहीं है। हमें गम नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा। हमें सिर्फ और दुख ये है कि मैं एक अफेक्टेड फैमिली से मेरा ताल्लुक है, 22 सालों से मैं सफर कर रहा हूं। आज तक इस एटमी रियासत ने यह गवारा नहीं किया, आज तक इस एटमी रियासत के इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारों ने यह गवारा नहीं किया कि मुझे इन मुल्की कवानीन के तहत इंसाफ फराहम किया जाए। और हमारा मुतालिबा भी यही है कि हमारे प्यारों पे अगर कोई इल्जाम है, आप उनको अदालत के जरिए सजा दो। जिस आइन और कानून की आप लोगों ने हल्फ उठाया है, उस आइन और कानून के जरिए आप लोग उनको इंसाफ के कटहरे में लाओ। हम ये मुतालिबा नहीं करते हैं कि हमारे आप लोगों को छोड़ दो, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आप ये सफर देखे 2011 से लापता अफराद के मसले पर एक कमीशन बनाया हुआ है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था। उसका मकसद ये था कि उसको सिर्फ इस वजह से बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस भी चले थे वहां पर जब साबित हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों को उठाने में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है, तो उस टाइम की पीपल्स पार्टी की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा कि इस हवाले से हमने एक कमीशन बनाया है। उस कमीशन का काम यह है कि वो तहकीकात करेगा और जो हकायक है, जो इन चीजों में मुलविस है जुबरी गुमशुदगियों के हवाले से, उनको मंजर आम पर लाएगा और कानून साजी की सिफारिश करेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कमीशन जिसका काम 1 साल में पूरा होना था, वो गुज़िश्ता 11-12 सालों से अभी तक केसेस की हेयरिंग कर रही है। उसकी आप रिकॉर्ड उठा के देखें, जब उसके सामने शवाहिद आ जाते हैं, उसने तकरीबन 700 के करीब ऑल ओवर पाकिस्तान से
प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी किए हैं। जिन लापता अफराद के केसेस में शवाहिद आए थे तो प्रोटेक्शन आर्डर उन्होंने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने सिफारिश नहीं की कि इस हवाले से ये इदारे मुलविस है। अगर देखा जाए उसके कारकर्दगी के हवाले से तो जब प्रोटेक्शन आर्डर्स पे अमल दरामद नहीं होता तो वो अपनी उन्हीं प्रोटेक्शन आर्डर्स के अगेंस्ट में जाता है, उन केसेस की दोबारा GIT करवाती है और उन केसेस को खराब करके उनको जुबरी गुमशुदगी के जमरे से निकालता है। तो ये है हमारे इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारे। और इसके अलावा अब मेरे ख्याल में पिछले गवर्नमेंट में फारूक नसीम के सरबराही में कमीशन बनाया गया था, वो भी अधूरा काम करके अपना छोड़ा गया। और मौजूदा गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर नजीर ताड़ के सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था, वो भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुका है। अब तकरीबन 4 कमीशन इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन उनका कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर इस हवाले से आप हुकूमतों का किरदार देखे, वहां पर भी हमें अफसोस होता है कि जो हमारे मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पाकिस्तान सतह के पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका अगर आप किरदार उठा के देखे, वहां पर भी आपको मायूसी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। वहां पर अगर आप देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में होते हैं तो वो इस मसलों को लेकर बड़ा इन मसलों पे चर्चा करते हैं, ताकतवर इदारों के खिलाफ बोलते हैं, अपने मकासद हासिल करने के लिए जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है वो फिर लापता अफराद के हवाले से खामोशी इख्तियार करते हैं। मैं इस हवाले से कहना चाहता हूं कि 2021 में जब हम लोगों ने इस्लामाबाद में धरना दिया था बलूचिस्तान के माँ और बहनों के साथ, वहां पर हमारे साथ ने जो अब बरसर इक़्तिदार PDM पार्टीज जो है उनके सारे कायदीन हमारे पास आए थे, बशमूल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के, वो वहां पर आई थी और उन्होंने कहा था कि हम इस मसले को हल करेंगे। और उन्होंने इमरान खान को मुखातिब होकर कहा था कि आपको इदारों से डरना नहीं चाहिए, आपको अल्लाह से डरना चाहिए, आपको इन लोगों को, इन मिस्कीन लाचार और बेबस खवातीन को जवाब देना चाहिए, आपको इदारों को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके कायदीन यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज तक जब वो बरसर इक़्तिदार उनकी पार्टी आई तो आज तक उन्होंने एक ट्वीट गवारा नहीं किया लापता अफराद के हवाले से। तो ये संजीदगी है हमारी मरकजी पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर इस तरह देखा जाए तो इससे हम ये समझते हैं कि इदारों के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी अपना विजन छोड़ा है, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग में शामिल है और जो यहाँ के बुनियादी हकूक है, बुनियादी राइट्स है, उस पर वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद की हुई है। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का मंशूर यही है कि वो अपने पिसे हुए अवाम और वो अपने गरीब अवाम और जिनके साथ जुल्म और ज्यादती होता है उनकी दादरसी करे, उनकी आवाज बने, उनकी रहनुमाई करे और उनको इंसाफ फराम करे, वो भी मुल्की कवानीन के तहत। आज अफसोस से कहना पड़ता है, आप पाकिस्तान के अंदर उठा के देखे, बामुश्किल आपको कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नजर आएगा जिसका विजन इक़्तिदार से पहले भी वही हो और इक़्तिदार के बाद भी वही हो, जिसकी वजह से आज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इक़्तिदार की खातिर उन इदारों की तरफ चले जाते हैं, उन इदारों की पूजा करते हैं और उन्हीं की तरफ चले जाते हैं ताकि उनको इक़्तिदार मिले। मैं कहना चाहता हूं अगर यही पॉलिटिकल पार्टीज अपने पिसे हुए अवाम की, अपनी लाचार माँ और बहनों की, अगर बलूचिस्तान के माँ और बहनों के ऊपर ये अपना दस्ते शफ़क़त रखते या ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुआ है उनके खिलाफ वो आवाज बुलंद करते, मैं दावे से कहता हूं कि आज उनका कशकोल इन इदारों की तरफ नहीं होता। उनको ये इदारे मिन्नत समाजत करते, अवामी मसाइल के हवाले से उनको मिन्नत समाजत करते, उनके तरीक़ेकार के हवाले से उनको मिन्नत समाजत करते, लेकिन उन्होंने अपना असल काम छोड़ के जिस तरफ उनको जानना चाहिए था, अफसोस से कहना है पड़ता है कि उस तरफ
طرف وہ لوگ نہیں گئے اور جس طرف ان کو نہیں جاننا چاہیے تھا وہاں پر وہ گئے، جس کی وجہ سے وہ آج میں ان کو اس اسٹیج پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی غلامی کی طرف گئے لیکن آزادی کی طرف نہیں گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس ملک کی آزادی اسی میں ہے کہ آپ اپنے عوام کی داد رسی کرے، آپ اپنی مظلوم لاچار ماں اور بہنوں کی آواز بنے، آپ سرخرو ہوں گے اور پاکستان میں امن آئے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کرو گے تو آپ لوگوں کا حال یہی ہوگا۔ اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈر کو، پولیٹیکل پارٹی میں رہنے والوں لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل اگر ورکر پورا عمر اپنا کسی سیاسی پارٹی میں گزارتا ہے، جب وہ بہت سے چیزوں پہ وہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو ان کو انہی اداروں کی طرف سے، انہی چیزوں کی طرف سے ان کے پارٹی پہ دباؤ ہو جاتا ہے اور ان کو پارٹی سے معطل کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی بہت سے ہمارے مرکزی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، نواز کوکر صاحب ہے جس نے ہیومن رائٹس کے بنیاد پر کام کیا، آج آپ دیکھیں پارٹی کے لیول پر اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ فرحت اللہ بابر اس بلوچستان پاکستان کے لیول پر بنیادی مسائل پر انہوں نے بات کی، لیکن یہ چیزیں ان کو ناگوار گزری، اس کو بھی پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا۔ تو یہ ہمارے پولیٹیکل ورکروں کے لیے، یہ ہمارے پولیٹیکل قائدین کے لیے ایک اشارہ ہے۔ تو آئے ان چیزوں کے حوالے سے ابھی سے ہم یہ تیار کریں، یہ عائد کریں کہ ہمیں اپنے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے سطح پر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے آج تک بلوچستان کے بنیادی مسائل پر بات نہیں کی، اور انہوں نے آج تک بلوچستان کے درد اور اذیت پر بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے جس طرح گوادر کا مسئلہ اٹھا کے دیکھے، وہاں پر گوادر بنا ہے، جہاں ایک انٹرنیشنل پورٹ بنا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑنی چاہیے تھی، لیکن کیوں وہاں کے لوگ ڈرتے ہیں، ایک خوف میں مبتلا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ریسورسز حاصل ہو رہے ہیں یا جو آمدنی حاصل ہو رہا ہے وہ بنیادی لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کو وہاں کے جو چیزیں ہیں ان کو وہاں پہ ان میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو آواز اٹھاتے ہیں، گوادر کا آپ تحریک اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ کافی خواتین اٹھے اپنے بنیادی رائٹس کے حوالے سے، لیکن ان کو بزور طاقت خاموش کیا گیا۔ اسی طرح بلوچستان کے دوسرے مسائل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے آواز اٹھائی تو ان کو بھی خاموش کیا گیا۔ تو یہ مسئلے ہے کہ ان کے حوالے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو، ان کو چاہیے کہ ان بنیادی رائٹس کے حوالے سے اپنی بات کرے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے، ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جتنی گورنمنٹس ہم پہ برسر اقتدار آئی، سب نے بلوچستان کے مسئلے کو صرف ایک سیکورٹی کا مسئلہ قرار دیا۔ اور 74 سالوں سے آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹس برسر اقتدار آئی، پہلے تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی بلوچستان کے لوگوں کے اوپر فوج کشی کی گئی ہے، ان کے حقوق پامال کیے گئے ہیں، ان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے، ہم ان کو ان کے جائز مقام دیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایک بھی پولیٹیکل پارٹی، ایک بھی برسر گورنمنٹ حکومت یہ بتائے کہ اس کے بعد انہوں نے بلوچوں کے زخموں پر، اہل بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے یا نمک پاشی کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہمارے عام پہ سارے دوست بیٹھے ہوئے، اس کے بعد پھر بلوچستان میں طاقت کا استعمال شروع ہوا ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ لوگوں کو ڈر اور خوف دلانے کے لیے یہاں کے ہمارے نوجوانوں کے سینوں کو ڈرل کیا گیا، ان کے سروں میں گولی ماری گئی، ان کے سروں کو ڈرل کیا گیا، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ طلباء کو اٹھایا گیا، بلوچ دانشوروں کو اٹھایا گیا، حتیٰ کہ پولیٹیکل وابستگی بنیاد پر، اجتماعی سزا کے بنیاد پر یہاں پہ باپردہ بلوچ خواتین کو بھی اٹھایا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ 6 دن کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور ان کو اس بنیاد پہ اٹھایا گیا کہ ان کی خاندان کی سیاسی وابستگیاں ہے۔ تو یہاں تک لوگ انتقام میں گرے ہوئے ہیں۔
तो हम उन मुक्तदर कुव्वतों को कहना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि इन 74 सालों में आपने बलूचिस्तान को सिक्योरिटी का मसला करार दिया, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, क्या आपने बलूचिस्तान में हमें बताएं, आपने बलूचिस्तान के अंदर अमन लाया? आज आपको बलूचिस्तान के घर घर से नफरत मिल रहा है, आज बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में आपके खिलाफ लोग निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ताकत का इस्तेमाल है। आपने बलूच कौम के पुरअमन आवाजों को आपने दबाने की कोशिश की। आप पाकिस्तान का तारीख उठा के देखे, जो पॉलिटिकल वर्कर अपनी बुनियादी हकूक के हवाले से पुरअमन एहतिजाज किया, आपने उनके लिए वो रास्ते बंद कर दिए। और ये हकीकत है कि जब आप पुरअमन आवाजों को दबाओगे तो वो नासूर बनेंगे। जब वो नासूर बनेंगे, वो न उसका हल न एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा, न वो यहाँ के मुल्क के ताकतवर इदारों के पास होगा, और न ही वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के पास होगा। उसका वाहिद हल ये है कि मुल्क के ताकतवर इदारों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान के मेन मरकजी पॉलिटिकल पार्टियों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्करों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान के दानिश्वरों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, और बलूचिस्तान के मसले को एक सियासी मसला समझना चाहिए और इस मसले को सियासी तरीके से हल करना चाहिए। आप देखें, कश्मीर में तो आप वहां पे जुल्म और ज्यादतियों पर आप बात करते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बात करते हैं, गवर्नमेंट्स बात करते हैं, वही चीजें अगर बलूचिस्तान के अंदर होते हैं, क्यों यहां पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्यों पाकिस्तान के जो मरकजी पार्टियां हैं वो क्यों इस मसले को संजीदा नहीं लेते? हम ये आज उनको कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत देर होने जा रहा है और बहुत देर हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों को आप लोगों ने दीवार से लगाया है, बलूचिस्तान के नौजवानों को आप लोगों ने दीवार से लगाया है, बलूचिस्तान के पूल जैसे नौजवानों की आप लोगों ने मसखशुदा लाशें फेंकी है। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अब भी आप लोगों के साथ वक्त है, आप बलूचिस्तान के लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से पेश आओ। अपना जो यह ताकत का इस्तेमाल है इसे बंद कर दो, बलूचिस्तान के लोगों के साथ डायलॉग करो, उनके महरूमियों को देखो, उनके जो बापर्दा खवातीन आप लोगों को रोडों पे नजर आ रहे हैं उनके सरों पे दस्ते शफकत रखो। अगर ये आज बलोच मजलूम है, अगर आज बलोच ये जुल्म सह रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि ये हकीकत है। अगर दुनिया में देखा जाए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का माशरा तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म और जबर का माशरा किसी हालत में भी कायम नहीं रह सकता। और अगर आप जुल्म करने वालों की हिस्ट्री देखें, मेरे ख्याल में आपको यजीद का नाम निशान नजर नहीं आएगा। आज जो भी लोग यजीद का नाम लेते हैं सबको पता है आज मजलूमियत की बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर हुसैन आज भी जिंदा है। तो ये चीजें आप लोगों को सोचना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के मरकजी लीडरशिप यहां पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो ये तो कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के महरूमियों के हवाले से, बलूचिस्तान में जुल्म और ज्यादतियों के हवाले से अपना किरदार अदा करे। अगर वो किसी स्टेज पे जाते हैं, बात करते हैं, वहां अगर वो 80% अपने पंजाब के हवाले से बात करते हैं, अपने लोगों के हवाले से बात करते हैं, कम से कम 20% तो बलूचिस्तान के हवाले से बात करे। अगर 20% नहीं होता है, कम से कम 10% तो बात करे। अगर 10% नहीं होता है तो कम से कम अगर हमें अपने लोग समझते हैं तो 5 मिनट तो हमारे लिए तो कम से कम आप फोरम्स पे बात करो। लेकिन हमें वहां पे ये बलूचिस्तान के जो महरूमिया है, जो यहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये जो यहां पे मावरा आईन इकदामात है या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, हमें मरकज के सतह पर कोई भी दानिश्वर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मरकज का बंदा हमें वहां पे बात करते हुए नजर नहीं आता। तो मेरी गुजारिश होगी अपने कायदीन से कि वो बलूचिस्तानियों को मजीद महरूमी की तरफ ना दिखाले और मजीद उनको दीवार से लगाने की कोशिश ना करे, बल्कि उनके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाए और उनके आवाज में आवाज बने और उनको इंसाफ फराहम करने में अपनी किरदार अदा करे। मैं आखिर में मोहतरम हाजी लश्करी साहब और
पीएस बलूचिस्तान फाउंडेशन के तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने आज मुझे बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल पर बात करने का मौका फराहम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारे जिबरी गुमशुदगियों का भी मसला अहले बलूचिस्तान का मसला है। यहाँ जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रहे हैं वो भी हम सब का मसला है। यहाँ पे फेक इनकाउंटर्स के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, वो भी आप लोगों के बच्चे हैं। आप सब लोगों को इन जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ भरपूर अपना आवाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। अगर आज बलूचिस्तान के खवातीन अकेले निकलते रोडों पे एहतजाज करते तो मैं समझता हूं ये अहले बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, और मेरी गुजारिश होगी मरकजी पार्टियों से, मरकजी कायदीन से कि वो बलूचिस्तान को मजीद इग्नोर न करे, वो अहले बलूचिस्तान की आवाज बने, ताकि जो यहाँ पे मावराए आईन इक़दामात हो रहे हैं, जो इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो लापता अफराद का मसला है, जो मसक शुदा लाशों का मसला है, या जो बलूचिस्तान के साइल और वसाइल का मसला है, वो यहाँ के लोगों के ऊपर खर्च हो और मावराए आईन इक़दामात का रास्ता रोका जा सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।